students, today we read the chapter 1, The Man Who Robbed the Bank. Yesterday we had studied that Mrs. Prakash met Mrs. Bhushan and told her about the news of the bank that is going to bankrupt. And now he told her that they had not paid their employees for a long time, about 2 months. And she told her husband who was at Jugal Kishore's electrical shop that they had not paid for 3 months. Now exaggeration is used there, and she also told him that the bank is going to bankrupt. Mr. Jugal Kishore called out Faiz Hussain, who worked at barber's shop to the next door, and he had surprised to hear this news because he had an account there, and he cut the old man's hair wrongly. And after that, the old man rushed to the general store and dialed Seth Govind's bank number. Now the chapter starts from page number 3. Today we will read here. Now the Seth was not at home. Seth जो है वो घर पर नहीं है. The Seth was not at home. Where was he then? Then it is doubtful where he was. The Seth was holidaying in Kashmir. You can say that they were guessing about it. The Seth was in Kashmir on his holiday. Oh, was that so? The elderly gentleman didn't believe it. The old man did not believe it. वो इसका विश्वास नहीं कर पाया. He hurried back to the barber shop. वो वापस जो है he returned back to the barber shop. वो वापस बार्बर की शॉप पर आए and told Faiz Hussain that the bird has flown. Now idiom is used here. The bird has flown. चिड़िया तो चुप गई, चिड़िया तो उड़ गई. The bird has flown. The bird here is used for Seth Govind Ram. Seth Govind Ram के लिए कहा कि Seth Govind Ram तो चले गए. Seth Govind Ram has left town. He told him that Seth Govind Ram left the town. Seth Govind Ram ने शहर छोड़ दिया. Definitely it means a collapse. Surely, definitely means surely. Surely it is clear that the bank is going to bankrupt. It is going to collapse. I will have rest of my hair cut another time. And the old man told Faiz Hussain that I will cut my hair, rest of my hair. जो बच्चे थे उसके बाल क्योंकि one side लॉन्गली जो हेयर थे वो लॉन्गली कट हुए थे, तो जो अदर साइड के बच्चे थे उसने कहा I will cut them another time. अगली बार उसे कटवा दूंगा. And then he dashed out of the shop. Dashed out hurriedly. वो बहुत जल्दी से शॉप से बाहर आए and making a beeline. Making a beeline it is also an idiom here. Idiom होती है जो कहावतें कही जाती है. Making a beeline. Here you can say metaphor is used. Metaphor भी हम कह सकते हैं यूज हुआ है. Metaphor क्या होता है? कंपैरिजन है without using as or like. उन्होंने जो people who are gathered outside the bank, बाहर जो खड़े हुए थे लोग बैंक के, उन लोगों की भीड़ को उन्होंने बी लाइन से कंपेयर किया है. जैसे बी लाइन जो होती है, जो बीज होती है वो एक लाइन में इकट्ठी होती जाती है और फिर हाइव क्रिएट करती है. बिल्कुल उसी तरह से क्राउड जो है वो मॉक वहां पर क्रिएट हो गया है. फॉर हिज ऑफिस एंड चेकबुक. वाई? फॉर हिज ऑफिस, अपने ऑफिस के लिए, और चेकबुक वगैरह के लिए वहां पर गैदर हो गया. इट मीन्स इसका मतलब ये था कि वो बोले और वो जल्दी से शॉप से बाहर गए और एक बी लाइन का हिस्सा बन गए, लोगों की भीड़ का हिस्सा बन गए जो ऑफिस जा रहे थे या फिर चेकबुक लेने के लिए, अपनी चेक लेने के लिए जा रहे थे. द न्यूज स्प्रेड थ्रू द बाजार विद अ रैपिडिटी ऑफ अ फॉरेस्ट फायर. हियर आल्सो इडियम. रैपिडिटी ऑफ फॉरेस्ट फायर, जंगल की आग की तरह फैल जाना. इट मीन्स द न्यूज ऑफ द बैंक spread
ट्रेवल्ड टू द टी शॉप। जनरल स्टोर से ये बात जो है वो टी शॉप तक पहुंच गई, जो चाय की दुकानें थी वहां तक पहुंची। सर्क्यूलेटेड अमॉन्ग गेस्ट द कस्टमर्स, और धीरे धीरे जो कस्टमर्स थे उनके बीच में भी ये स्प्रेड हो गई। Here, the rumor of the banks going to bankrupt spread rapidly from the general store to the tea shop. चाय की दुकानों तक पहुंची। Circulated amongst the customers and then spread with them in various direction to the पान सेलर। फिर कस्टमर्स के बीच में गई और उसके बाद में ये स्प्रेड होते हुए कहाँ तक गई? वेरियस डायरेक्शन ऑफ द पान सेलर। जो पान सेलर थे उनकी जो अलग अलग डायरेक्शन में जो पान सेलर जाते थे वहां तक ये स्प्रेड हो गई। द टेलर एंड द फूड वेंडर, जो वेंडर ऑफ द फूड्स है, टू whom it is also spread. The jewelers and the beggars sitting on the pavement. It means everyone of the town known about it. वो हर कोई इसके बारे में जान गया। Whether it is jeweler, whether it is vendor, everyone know about it. Man stood in various at the street corner discussing the situation. The man stood in groups. लोग जो कि ग्रुप्स में थे, जो स्ट्रीट के कॉर्नर्स पर थे, they were also discussing about the situation of the that day. उस दिन की जो भी सिचुएशन थी उसके बारे में they were discussing about, वो बातें कर रहे थे। The small town in the foothills seldom had a crisis. Now seldom is rarely, कभी कभार जो मुश्किल से होता है। The small town in the foothills, foothills का वो छोटा सा जो टाउन था उसमें इस तरह की क्राइसिस जो होती हैं, इस तरह की टिपिकल सिचुएशंस जो होती हैं वो रेयरली हुआ करती थी। एंड नेवर हैड फ्लड्स, अर्थक्वेक्स और ड्रॉट, और नेचुरल कैलेमिटीज जितनी भी थी, चाहे वेदर इट इज अर्थक्वेक, ड्रॉट और यू कैन से फ्लड्स, नेवर हैड, वो कभी नहीं हुई थी। एंड सो द इमिनेंट क्रैश ऑफ द लोकल बैंक सेट एवरीवन टॉकिंग एंड स्पेक्युलेटिंग एंड रशिंग अबाउट इन अ फ्रेंजी। नाउ द मीनिंग आर इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब होता है अनप्लीजेंट, जो अच्छी नहीं लगती हो, अनप्लीजेंट हो। इस तरह की जो अनप्लीजेंट सिचुएशन थी बैंक के बारे में, लोकल बैंक के बारे में, सेट एवरीवन टॉकिंग। नाउ एवरीवन वर टॉकिंग अबाउट इट, वो इस बारे में बात कर रहे थे। एंड स्पेक्युलेटिंग, स्पेक्युलेटिंग इट मीन्स दे आर डिस्कसिंग अबाउट द कॉजेज ऑफ द दिस क्रिटिकल सिचुएशन। ये जो क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हुई है उसके बारे में क्या कारण रहे उसके, व्हाट आर द रिजल्ट ऑफ इट, दे आर टॉकिंग अबाउट, क्या रिजल्ट हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। रशिंग अबाउट इन अ फ्रेंजी, फ्रेंजी मीन्स एंजाइटी, चिंता के कारण। एंड दे वर रशिंग अबाउट हियर एंड देयर विद एंजाइटी, और चिंता के कारण इधर उधर घूम रहे थे। सम वर्स्टेड, वर्स्टेड मीन्स होता है ब्रैग, ब्रैग मीन्स जब आप व्हेन यू आर प्रेजिंग योरसेल्फ, आप खुद अपनी खुद की तारीफ करते हैं और बढ़ा चढ़ा करके करते हैं, अपनी शेखी बगाड़ते हैं, अपनी यू प्रेज योरसेल्फ, आप खुद अपनी प्रशंसा करते हैं। सम बोल्स्टेड ऑफ हियर फॉर-साइटेडनेस, फॉर-साइटेडनेस व्हाट वाज हैपनिंग इन फ्यूचर, जो आगे क्या होने वाला है, यू आर प्री इमेजिन अबाउट इट, आप उसके बारे में पहले से ही इमेजिन कर लेते हैं, जान लेते हैं। दैट इज फॉर-साइटेडनेस, यानी पूर्वानुमान लगा लेते हैं। Congratulating themselves on having already taken out their money. Now जो कुछ लोग थे वो क्या कर रहे थे, वो खुद अपनी तारीफ कर रहे थे कि मुझे तो पहले से ही इस बारे में क्लियर हो गया था कि समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ होगा। कॉन्ग्रेचुलेटिंग देमसेल्व्स, एंड दे आर कॉन्ग्रेचुलेटिंग देमसेल्व्स, वो खुद को ही अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे कि उन्होंने जो है अपना मनी जो है पहले ही विड्रॉ कर दिया, अपना पैसा पहले
नेवर हैविंग पुट एनी इन, और आगे उसमें पैसा उन्होंने डिपॉजिट भी नहीं किया. Others speculated on the reason for the crush, putting it all down to Seth Govindram pleasure-loving ways, and the other persons they are ponder about it or imitate about it. It means वो खुद जो है वो इस बारे में मतलब सोच रहे थे, अपने आप में ये सोच रहे थे ऑन द रीजन कि इस तरह के क्रैश होने का रीजन क्या है ये, और इस सब का सारा जो क्रेडिट था उन्होंने सेठ गोविंद राम का प्लेजर लिविंग लाइफ जो था, लविंग लाइफ था, उसको क्रेडिट दे दिया कि सेठ गोविंद राम को तो आराम पसंद जिंदगी पसंद है, इस वजह से ये सब कुछ हुआ है. द सेठ हैड फ्लेड द स्टेट said one, and one of them said that सेठ गोविंद राम फ्लेड द स्टेट, उन्होंने तो ये स्टेट ही छोड़ दिया है. He had fled the country, वो कंट्री से ही भाग गए हैं. Said another person said it. Others insisted that he was hiding. जो अदर लोग थे, जो दूसरे लोग थे, उन्होंने क्या इंसिस्ट किया? They were insisted that he was hiding somewhere in. Now, from here, someone who had relative working in a club. एक व्यक्ति जो कि वहाँ उनका रिलेटिव है और क्लब में जो है वर्क करता है इन द बैंक, डिसाइडेड टू कॉल हिम एंड गेट द फैक्ट्स. उसने डिसाइड किया कि ही कॉल्ड हिम, वो उसे फोन करेगा, एंड ही हैड नोन अबाउट एवरीथिंग, द फैक्ट्स अबाउट द बैंक. आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, सेड द क्लर्क. द क्लर्क सेड हिम दैट ही डोंट नो अबाउट द न्यूज, except it that the half of the town is here trying to take their money out. सिवाय इसके कि कुछ लोग जो हैं वो बाहर बैंक के बाहर जो हैं गैदर देयर इकट्ठा हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू विथड्रॉ देयर मनी, और वो अपना पैसा निकालना चाहते हैं. There is a rumor that none of you has been paid, and he said that there is a rumor spread द टाउन. कह रहे हैं कि एक अफवाह है जो पूरे टाउन में फैली हुई है, दैट इज यू हैव नॉट पेड दियर एम्प्लॉइज, आपने अपने एम्प्लॉइज को पे नहीं किया है. वेयर द क्लर्क्स हैव बीन दियर सैलरीज, एंड नाउ ही सेड दैट द क्लर्क्स हैव बीन पेड, क्लर्क जो है उनको पे कर दिया गया है. वी वुडंट बी वर्किंग अदरवाइज वी वुड नॉट वर्क हियर, अगर ऐसा होता तो हम जो है यहाँ पर वर्क नहीं करते. एंड नाउ इट मे बी दैट सम ऑफ द पार्ट टाइम वर्कर्स आर गेटिंग पेड लेट. कहते हैं इट मे बी पॉसिबल, इट मे बी दैट द पार्ट टाइम वर्कर्स हैव नॉट बीन पेड एंड दे आर पेड लेट. ये हो सकता है कि जो पार्ट टाइम वर्कर्स है उनको पे नहीं किया गया है और उन्हें लेट पे कर दिया गया है. बट दैट इजंट ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ मनी, बट इट इज नॉट ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ मनी. लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका कारण जो है वो पैसे की कमी है. इट इज जस्ट दैट द क्लर्क हु लुक्स आफ्टर देयर पेमेंट इज ऑन सिक लीव, एंड ही सेड दैट इट इज द रीजन दैट द क्लर्क हु वर्क्स फॉर देम, जो उनके लिए काम करता है, उनकी पेमेंट के लिए काम करता है, उनकी पेमेंट का जो है अकाउंट रखता है, वो जो है इज ऑन लीव, वो लीव पर है, ऑन सिक लीव, बीमारी की छुट्टी पर है. एंड यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू डू हिज वर्क डू यू, एंड ही सेड दैट यू डोंट एक्सपेक्ट मी, आप मुझसे उम्मीद मत करो कि मैं ये काम करूं. डू यू, क्या तुम करते हो? टेक क्वेश्चन इज यूज्ड हियर, ग्रामर का एक टॉपिक है टेक क्वेश्चन, दैट इज यूज्ड हियर, वो यहाँ यूज किया गया है. एंड ही पुट द टेलीफोन डाउन, एंड आफ्टर दैट ही पुट डाउन द टेलीफोन, उसने टेलीफोन जो है वो नीचे रख दिया. Yes, now today's homework is you have to write down the difficult word. Okay.